Hello students, I am Bhageshri Deshmukh. Here students, I am going to teach you another lesson from standard 3rd, lesson number 2. Yes, you can guess here, some kites are there. So our lesson name is The Little Red Kite. Yes, I know that you all love to fly kite. So here is another one interesting lesson for you students, kite. You can see on page number 15, some kites are there of various shapes, various colors. See, one is in shape of caterpillar, some small kites are there. So here in this lesson we are going to learn something moral, something story about kites. Kites were first invented in China. Today people all over the world enjoy flying kites. Look at these pictures. Which kite do you like the best? Discuss in your class with your teacher, with your students, with your student friends. See, here are some kites. कौन सा वाला काइट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? अब हर किसी का अपना अपना अलग ओपिनियन होगा. कोई कहेगा मैम मुझे कैटरपिलर वाला ज्यादा अच्छा लगा, कोई कहेगा मैम मुझे येलो कलर फेवरेट है तो मुझे येलो वाला अच्छा लगा. सी ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी लाइक यू ओनली. I know that you also enjoy to fly kites, and these all students, all kids are enjoying kite flying. And here we got one information that first of all kites were invented in China. See, now here we are going to start our lesson, page number 16. We can learn something only if we try. Read how the little red kite learned to fly. हमें कहा गया है कि हम तभी कुछ सीख पाते हैं जब हम कोशिश करते हैं. You heard so many times from your teachers that कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. So इस लेसन में हम कोशिश, try, fly, जो काइट है वो फ्लाई करने के लिए कोशिश कैसे करता है, that one we are going to learn here. Hurry, look up at the sky. One boy named Hurry. See, some kids are there, some children are there. They are trying to fly the kite. अब ये शायद हरी होगा क्योंकि हरी के रिएक्शंस कुछ अच्छे नहीं है. Because see, you can see in the picture, उसका काइट उड़ ही नहीं पा रहा है. See, Hurry looked up at the sky. It was a lovely day. The tall trees were swaying slowly in the breeze. See, Hurry looked up at the sky. Hurry ने स्काई की तरफ देखा. तेज हवा अगर रहेगी तो आपको पता है कि हम काइट फ्लाई नहीं कर सकते. So Hurry just came out from the house and just looked up the sky, and what he saw? A lovely day. A tall trees were swaying slowly in the breeze. Slowly swaying मतलब धीरे धीरे हिलना, मतलब थोड़ी हवा है और इस सिचुएशन में इट इज अ गुड एटमॉस्फेयर टू फ्लाई आवर काइट. सो हियर हरी इज हैप्पी. द क्लाउड्स वेर हाई इन द ब्लू स्काई. बादल, ब्लू स्काई में क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे थे कुछ. इट लुक एज दो समवन हैड टेकन बिट्स ऑफ कॉटन वूल एंड स्टक देम इन द स्काई. इट वाज अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स. कैसे दिखाई दे रहा था स्काई? जैसे किसी ने कॉटन बॉल्स मतलब कि जो कॉटन, एक कपास जिसे बोलते हैं, एक कॉटन बॉल्स किसी ने स्टक कर दिए, मतलब किसी ने वहां पे ले जाके चिपका दिए वुलन. इट वॉज अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स. और ये कैसा दिन है? बहुत ही अच्छा दिन है. बट हरीज लिटिल रेड काइट डिडंट सीम टू थिंक सो. लेकिन हरी की एक लिटिल काइट है, रेड काइट है, जो ऐसा शायद नहीं सोच रही. बिकॉज शी it don't want to fly. See, why he don't want to fly? When Minnie threw the kite up, it skipped a little and then dragged on the grass. It didn't rise up at all. जब भी हम काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो हमारा एक फ्रेंड पतंग को ऐसे पकड़ता है और जोर से हवा में ऐसे छोड़ता है, और उसके बाद हम पतंग को फ्लाई कर सकते हैं, काइट को फ्लाई कर सकते हैं. उसी तरीके से हरी का एक फ्रेंड है मिनी ने काइट को थ्रू किया, लेकिन काइट क्या हो गया? जमीन पे आकर गिर गया. काइट डोंट वांट टू फ्लाई. हरीज ब्रदर रवि हैड अ बिग ग्रीन एंड येलो काइट. सी, हरीज ब्रदर, ही इज रवि. रवि इज हैविंग बिग ग्रीन एंड येलो काइट. यू कैन सी इन द पिक्चर. His friend threw it up and at once it flew into the sky. Come on little red kite, said Hurry. Now Ravi's kite is trying to fly and it goes up and up. Now Hurry is also in thinking that yes, मुझे भी मेरे काइट को उड़ाना है. Come on,
He just boost up his confidence. किसका? Red kite का. Come on, red kite, you can do this. Come on, let's try to fly. Fly, fly. Do fly into the sky. You will have fun. What it is saying? Fly, fly, fly. चलो जल्दी जल्दी उड़ो और कोशिश करो. Into the sky, you will have fun. आपको बड़ा मजा आने वाला है. Just try. But the little kite just trembled a little and lay down quietly on the ground. See, trembled a little. The word are written in blue letters. Trembled a little means shook a bit in fear. मतलब कि थोड़ा सा डर लगना, थोड़ा सा हिचकिचाहट होना कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता. बहुत बार ऐसा होता है ना कि टीचर आपको कुछ नया काम करने के लिए देती है. फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना होता है, हमको हमारे पेरेंट या एल्डर ब्रदर बोलते हैं कि नहीं नहीं यू कैन डू, चलो ट्राई करो. बट एट दैट टाइम we just feel fear. No, मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता. In that way only kite is also in thinking no, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता. Oh, I can't do it, thought the little kite. What kite thought? No, I can't do it. मैं तो ये नहीं कर सकता. I am so afraid. मुझे बहुत डर लग रहा है. Afraid means डर लगना. I might fall on a sharp branch or a cruel thorn. I could get hurt. मैं गिर गया तो मैं अगर नुकीली कांटों के ऊपर, थ्रोन मींस व्हाट, कांटे, नुकीली कांटों के ऊपर गिर गया या मैं झाड़ियों में गिर गया तो मुझे लग सकता है. आई मस्ट गेट हर्ट. सो आई डोंट वांट टू फ्लाई. दैट रेड काइट कुछ भी करके उड़ने के लिए रेडी नहीं है. कम ऑन लिटिल काइट, डोंट बी अफ्रेड, सेड हैरी. हैरी बोलता है कि कम ऑन, कोई बात नहीं, चलो चलो आ जाओ, आप कर सकते हो. यस यू कैन डू इट. मिनी सेड, maybe the little kite is afraid of these bushes and trees. Let's go to the middle of the park. अब मिनी सोचती है कि शायद इस काइट को ये इतने सारे बुशेस, मतलब कि जहाँ पे गहरी झाड़ियां है, उसका शायद डर लग रहा है. तो हम क्या करते हैं, पार्क के मिडल में जाके कोशिश करते हैं कि हम पार्क के बीच में से उड़ाएंगे तो शायद जो रेड काइट है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपना कोशिश करेगा. सी ऑन नेक्स्ट पेज. सी स्टूडेंट्स, various colors of kites are there flying in the sky. Some children are trying to fly the kite. But see, now here the picture is changed. See. So the two children took the kite to the middle of the park, which was an open and grassy space. Now the children all go in middle of the park. पार्क के बीच में जाते हैं जहाँ पे ज्यादा झाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ से उड़ाने की कोशिश करते हैं. There were no bushes or trees around. कोई भी आजू बाजू में पेड़ नहीं है, झाड़ियां नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है. नाउ यू मस्ट ट्राई हार्ड व्हेन आई थ्रो अप, मिनी टोल्ड द काइट. अब मिनी काइट को कहती है कि कोई बात नहीं, अब आप अच्छे से ऊपर उड़ना. जब मैं आपको ऊपर थ्रो करूंगी, आपको क्या करना है, काइट अच्छे से कोशिश करना है और उड़कर दिखाना है. मिनी ran fast with the little kite and Harry held the string firmly. Now see, three people are there now. Who? Harry, Minnie and one his brother also. So what happened here? Minnie ran fast with the little kite. अब मिनी ने ऐसा काइट पकड़ा और जोर से दौड़ने लगी. And Harry held the string firmly. अब स्ट्रिंग मतलब मांझा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, जो थ्रेड है उसको स्टेडीली मतलब बिल्कुल ना हिलाते हुए हैरी पकड़ के रखता है. Then Minnie jumped up and threw the little kite as high as she could. अब मिनी ने बड़ी जोर से जंप करके उस काइट को ऊपर थ्रो किया ताकि वो ज्यादा दूर तक उड़ सके. The kite felt a little stir in its tail. अब काइट को थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा वो हिलने लगा. It tried really hard. अभी काइट ने सोच लिया था कि नहीं मुझे ट्राई करना है. अब उसने जोर से ट्राई किया. It gave a big push when it felt the breeze. जोर से उसे पुश की ऐसी फीलिंग हुई और वो उड़ने की कोशिश करने लगा. The breeze soon whooshed it up. Whooshed it up means to move suddenly or quickly with a rushing sound. मतलब कि जब हम थ्रेड घुमाते तो ऐसी आवाज आती है, तो हवा के साथ वो जो आवाज आई और काइट उड़ने की कोशिश करने लगी. The red kite felt very excited. अब रेड काइट को कॉन्फिडेंस आने लगा, मजा आने लगा. Oh, I am flying, sang the little kite as it pulled at the string. अब यहाँ पे खुशी के मारे जो रेड काइट है वो जोर जोर से गाना गाने लगा. Oh, I am flying. क्योंकि पहले तो रेड काइट का मन ही नहीं था उड़ने का, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो
वो कोशिश में कामयाब होने लगता है और वो खुशी के मारे गाना गाने लगता है, ओ आई एम फ्लाइंग। और ये देखकर सब बच्चों को काफी मजा आता है। इट कुड सी द पाथ बिलो ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब ये तो आपको भी पता है, जब हम झूले में बैठते हैं, राउंड राउंड वाला झूला, ऊपर से देखते हैं तो हमको सब पीपल के सब लोग कैसे नजर आते हैं, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, छोटे छोटे छोटे। अगर हम बहुत ऊंचाई के हाइट से अगर हम नीचे वाले लोगों को देखेंगे, नीचे वाली चीजों को देखेंगे, तो सब चीजें हमको छोटी छोटी नजर आती है। तो एट द सेम वे रेड काइट ऑल्सो फील दैट ऑल द थिंग्स आर स्मॉलर स्मॉलर। उसको बहुत अच्छा लगता है कि यस, बाकी और काइट्स की तरह भी मैं भी उड़ने लगा हूं। आफ्टर अ व्हाइल मिनी एंड हैरी were little dots at the end of the string. Now the little kite was flying near the other kites. अब छोटी काइट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये रेड काइट अब बाकी और काइट्स के साथ मजे से हवा में झिलमिला रही है, उड़ रही है। वेलकम लिटिल वन सेड अ काइंड ब्लू काइट। एक ब्लू काइट है जो आसमान में जाके रेड काइट को मिलती है। वो रेड काइट का हौसला देखकर बोलती है कि वाह, वेरी गुड, वेलकम, वेलकम टू द स्काई। द लिटिल काइट waved its tail as it sailed away. अब देखो टेल, यू नो द टेल ऑफ काइट, सी दिस। सो वो टेल बड़े मजे से घुमाती है, उसको भी मजा आ रहा है। It loved the blue sky. It loved sailing in the breeze. It loved looking at the clouds that were still far away. Wow, the red kite. Imagine students what the red kite is feeling. That kite is in sky, some clouds are there, some big kites are there with him, and that red kite also is waving like this in a very funny way. Ah, you made it after all, said Ravi's green and yellow kite as it came close. अब रवि की जो येलो और ग्रीन काइट है वो भी उसे कहते हैं यस यू मेड इट, कि वाह वाह आपने तो करके दिखाया। रेड काइट को बोलता है लुक आउट फॉर दैट ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर, इट कुड हर्ट यू। आई नो दैट यू ऑल नोज अबाउट द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मीन्स थोड़ा सा डरावना। सी येलो काइट रेड काइट से क्या कहता है कि बच के रहना भाई किसी से, दैट पर्पल मॉन्स्टर काइट, बिग वन काइट, it can hurt you. However, the little red kite just whooshed up and down as it flew away. It was not afraid anymore. It was enjoying itself very much. Students, what? Now he is not afraid of anyone. Now he is confident. Why? Because he just tried to fly. अगर उसने कोशिश ही नहीं की होती तो क्या वो उड़ पाता था? So here we can get the moral from this story that once we try to do anything then we can do. इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सभी काइट, सभी स्टूडेंट, सभी जो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वो सब खुशी से रेड काइट के लिए तालियां बजाते हैं। So hope you like this story. Here students, the homework is that you have to write all the words which are written in blue. जो भी ब्लू लेटर में आपकी बुक में लिखे हैं वो सब मीनिंग and that words you have to write in your notebook and try to solve the exercise from the back exercise lessons from page number 18. Hope you understand the lesson. Thank you.